1999 میں نواز شریف حکومت کا تختہ دھڑام کرنے سے صرف ایک مہینہ پہلے اسکردو کے شنگریلا ہوٹل کی لابی میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے اٹالین لیزر گائیڈڈ پسٹل تانا ہوا تھا۔ وہ ایک منسٹر کو اس پسٹل کے گن بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس پستول کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں۔ پیچھے سے پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے آرمی چیف کے پستول پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زومنی الفاظ میں کہا، آپ کس کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ ماحول میں ایک سراسمگی پھیل گئی۔ اس واقعے کے اگلے ہی مہینے یعنی 12 اکتوبر 1999 کی سنسنی خیز شام کو آرمی چیف کے حامیوں نے وزیر اعظم نواز شریف کی گورنمنٹ بندوق کے نشانے پر گرا دی۔ 12 اکتوبر 1999 کی شام سے تھوڑا پہلے آرمی کے GHQ میں دو جنرل گالف کی بجائے ٹینس کھیل رہے تھے۔ اچانک دونوں کے موبائل فونز ایک ہی وقت میں ٹینس کورٹ کے اطراف میں بجنے لگے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ٹینشن ہے۔ انہیں فون پر انفارم کیا گیا کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا ہے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگا دیا گیا ہے۔ فون سننے والے جنرل مشرف کے دو اہم بازو چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان اور کمانڈر 10th کور جنرل محمود تھے۔ دونوں نے کھڑے کھڑے ایک مختصر لیکن فیصلہ کن میٹنگ کی۔ انہوں نے ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اوون بینٹ جونز اپنی کتاب پاکستان ان دا آئی آف اسٹارم میں لکھتے ہیں، ایک آئی وٹنس نے بتایا، میں نے دو سینئر افسران کو اتنی تیزی سے بھاگتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے GHQ کی طرف بڑھے اور اپنے اختیارات پر غور کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک چیز شک سے بالاتر ہے، وہ نواز شریف کو آرمی چیف کی تبدیلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ دونوں جرنیلوں نے پنجاب ریجمنٹ کے میجر نثار کو 15 مسلح فوجیوں کے ساتھ اسلام آباد میں واقع PTV کی عمارت کی طرف پیش قدمی کا آرڈر دیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ مشرف کی برطرفی کے بارے میں کسی بھی نیوز کو روکا جائے۔ جیسے ہی میجر نثار اپنے جوانوں کے ساتھ روانہ ہوا، جنرل عزیز خان نے راولپنڈی میں آرمی ہیڈ کوارٹر میں تمام دستیاب کور کمانڈر اور دیگر سینئر افسران کی میٹنگ بلائی۔ اس پر GHQ میں افسران، جن میں DG ملٹری آپریشنز جنرل شہد عزیز نمایاں تھے، جنرل محمود اور جنرل عزیز خان کا ساتھ دیا۔ یوں مشرف کے حامیوں نے اسٹیٹ کی پاور کے سب سے بڑا اور اہم قلعہ GHQ کو مشرف کے نام کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں فوجی بغاوتوں کے لیے مشہور زمانہ 111 بریگیڈ GHQ سے نکلی اور برق رفتاری سے اپنے ہدف کی طرف مارچ کیا۔ اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے نواز شریف ملتان کے قریب شجاع آباد میں جلسہ کرنے کے بعد چکلالہ ایئرپورٹ پہنچا تھا اور اپنے ڈیفنس سیکٹری ریٹائرڈ جنرل افتخار علی خان سے اپنا راز اگلا۔ افتخار، میں نے ISI چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈیفنس سیکٹری ششدر رہ گئے۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ کو اس معاملے پر مشرف سے بات کرنی چاہیے۔ نواز شریف نے کہا، اس بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ادھر سری لنکا میں جنرل مشرف کا جہاز PK-805 جیسے ہی شام 4 بجے کولمبو سے کراچی کے لیے ٹیک آف کرتا ہے تو اسی لمحے پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہلچل مچنا شروع ہو جاتی ہے، جس نے بہت جلد GHQ، PTV اور کراچی ایئرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شام 4:30 تک نواز شریف نے آرمی کی کمان کی تبدیلی کے ڈرافٹ پر سائن کر دیے اور نوٹیفیکیشن پریزیڈنٹ کو بھجوایا کہ وہ اسے دیکھ لے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس ڈرافٹ پر چلاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورڈ اپرووڈ لکھنے کی بجائے انگلش کا ورڈ سین لکھا، یعنی ہاں دیکھ لیا۔ پریزیڈنٹ رفیق تارڑ شاید اس بات سے آگاہ تھے کہ نواز شریف کے دن گنے جا چکے ہیں۔ رسمی کارروائیوں کے بعد نواز شریف پاکستان ٹیلی ویژن PTV سے کہا کہ وہ جلدی سے مشرف کی برطرفی کی خبر نشر کرے۔ PTV نے شام 5 بجے کی نیوز میں مشرف کی برطرفی اور نئے چیف کی تقرری کی نیوز اناؤنس کر دی۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے عملاً فوج کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہی سے اپنے کور کمانڈرز کو فونز کال کرنے لگے۔ اس نے انجینئرنگ کور کے ایک پرانے دوست کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اکرم کو بلایا اور انہیں چیف آف دی جنرل سٹاف کی نوکری کی پیشکش کی۔ اپنی پروموشن سے پرجوش جنرل اکرم نے کہا کہ وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس آ رہا ہے۔ پھر ضیاء الدین نے جنرل سلیم حیدر کو بلایا، جسے حال ہی میں مشرف نے نواز شریف کا ساتھی ہونے کے شبے میں نوکری سے فارغ کیا تھا۔ حیدر گالف کھیل رہا تھا۔ حیدر کو جنرل محمود کی نوکری یعنی کہ 10ویں کور کمانڈر کی پیشکش کی گئی۔ دو اہم پوسٹوں کو ترتیب دینے کے بعد ضیاء الدین نے دوسرے کور کمانڈروں سے رابطہ شروع کر دیا۔ ان میں زیادہ تر غیر وابستگی والے کمانڈرز تھے۔ بڑھتی ہوئی شدت سے بے خبر PTV جنرل ضیاء الدین کی تقرری کی خبریں نشر کرتا رہا۔ اسٹیشن کے مینیجر کو سب سے پہلے مسئلے کی سنگینی کا علم اس وقت ہوا جب GHQ سے بھیجے گئے میجر نثار اور ان کے جوانوں کی بندوقوں کی
15 नालियां सीधी न्यूज कंट्रोल रूम में घुसी। इसे उतारो, इसे उतारो। मेजर निसार चिल्ला चिल्ला कर मुशर्रफ की बरतरफी की न्यूज उतारने का कहने लगा। 15 तनी हुई लोडेड बंदूकें और एक चीखते हुए मेजर को एकदम सामने पाकर पीटीवी की हवास बाख्ता अमले ने फौरन मेजर के हुक्म की तामील की। शाम 6 बजे के न्यूज़ बुलेटिन में न्यूज़ कास्टर शाइस्ता जैद ने मुशर्रफ की बरतरफी का कोई जिक्र ना किया तो टीवी के सामने बैठे नवाज शरीफ ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से कहा, सीधा पीटीवी हेडक्वार्टर जाकर मालूम करो कि क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि फौज के जवान तो पीटीवी की बिल्डिंग में घुस गए हैं, इस पर नवाज शरीफ ने अपना दूसरा कार्ड खेलना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर ने फोन उठाया और अपनी डूबती नैया को बचाने की आखिरी मगर बेसूद कोशिश की। उसने कराची में मुकीम सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अमीनुल्लाह चौधरी और पीआईए के चेयरमैन शहद खाकान अब्बासी से बात की। प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी को हुक्म दिया, जहाज PK-805 को पाकिस्तान में उतरने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चौधरी ने फौरन कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को फोन किया। कुछ ही देर में कंट्रोल टावर ने हवा में मौजूद PK-805 को इतला दी कि आपको पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त नहीं, आप मिडल ईस्ट या कहीं और चले जाएं। वापस इस्लामाबाद में शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल वजीर आजम की रिहाइशगाह से पीटीवी की खबर लेने के लिए निकले तो उसने गेट पर मौजूद पंजाब पुलिस के लीड फोर्स के कमांडोज को अपने साथ लिया और 6:15 पर पीटीवी पहुंचा और सीधा कंट्रोल रूम गया, जहां उसने पंजाब रेजिमेंट के मेजर निसार को अपने 15 जवानों के साथ एक्टिव पाया। फौरन अपने आप को गैर मुसल्लह कर दो, ब्रिगेडियर जावेद ने चिल्लाकर आर्डर दिया। मेजर निसार ने इनकार कर दिया। ब्रिगेडियर ने पिस्तौल निकाला और मेजर निसार के सीने पर रख दिया। पीछे से पंजाब पुलिस और पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली। फायरिंग का होलनाक तबादला सेकंड से भी कम लम्हों के फासले पर था। पीटीवी के कंट्रोल रूम में इंतहाई सख्त कशमकश चल रही थी। टेलीविजन का स्टाफ इंतहाई सख्त खौफ में था कि अभी फायर चले। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेजर निसार ने पहले पलकें झपकाई। उसने अपनी बंदूक ब्रिगेडियर जावेद के हवाले कर दी और अपने आदमियों से कहा कि वो अपने हथियार रख दें। चंद मिनटों में मेजर और उसके आदमियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपने साथ आई एलीट फोर्स को हुक्म दिया कि वो पीटीवी के गेट पर रहें, जो भी मज़ाहमत करे उसे गोली मार देना, और खुद वजीर आजम को अपनी कामयाबी की इतला देने के लिए वापस चला गया। पीटीवी चंद मिनटों के बाद एक दफ़ा फिर सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। शाम 6 बजे के बुलेटिन के आखिर में मुशर्रफ की रिटायरमेंट की न्यूज़ दोबारा नशर की गई। ये न्यूज़ देखकर नवाज शरीफ की हौसला अफजाई हुई और उसने मुशर्रफ को मुल्क से बह रखने के लिए अपनी कोशिशों को दोबारा तेज कर दिया। तियारा कराची से 50 मील दूर पहुंच चुका था और मिडल ईस्ट तक पहुंचने के लिए उसमें ईंधन की कमी थी। अमीनुल्लाह चौधरी ने वजीर आजम को फ़ोन किया और बताया कि जहाज़ का ईंधन कम है, ये मिडल ईस्ट नहीं पहुंच सकेगा। मगर नवाज शरीफ अपनी जिद पर अड़े रहे कि जहाज़ को पाकिस्तान में नहीं उतरना चाहिए। इधर GHQ में फौजी अफसरान ने शाम 6 बजे के आखिर में मुशर्रफ की बरतरफी की खबर दोबारा सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि पीटीवी के हेडक्वार्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है। मिलिट्री के दूसरे यूनिट को GHQ से तेजी से पीटीवी की तरफ रवाना किया गया। शाम 6:45 पर एक और मेजर ने 5 मुसल्लह फौजियों के साथ पीटीवी के अंदर जाने की कोशिश की, मगर गेट पर मौजूद पंजाब एलीट पुलिस के गार्ड्स ने मेजर को इतने कम फौजियों के साथ अंदर जाने की इजाज़त ना दी। मेजर साहब तेजी से वापस मुड़े और आधे घंटे बाद फौजियों का एक ट्रक भर के आ गए। हाथ के जोरदार इशारे से मेजर ने अपने जवानों को हुक्म दिया कि वो पीटीवी के गेट पर चढ़कर अंदर घुस जाएं। पीटीवी पर जमा होने वाले जर्नलिस्ट ने वो तस्वीर फिल्माई जो चंद घंटों में पूरी दुनिया के न्यूज़ बुलेटिन में सरे फहरिस्त थी। पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स ने जब इतने सारे फौजी इकट्ठे आते देखे तो उन्होंने कोई मज़ाहमत ना की। बाज़ पुलिस वालों ने तो अपने हथियार ज़मीन पर रखे और चौकड़ी मारकर अपने हथियारों पर बैठ गए और तमाशा देखने लगे। शाम 7:15 पर पीटीवी को फौजी ट्रक के दस्ते ने फतह करके नशरियात को बंद कर दिया। GHQ के बाद पीटीवी भी अब मुशर्रफ के हामियों के कंट्रोल में था। इसके साथ बगावत का दायरा कार फैल चुका था। मुशर्रफ के हामी जर्नलों के आगे अब 2 अहम तनसीबात, प्राइम मिनिस्टर हाउस जहां प्राइम मिनिस्टर अपने नए आर्मी चीफ के साथ बैठा था, और दूसरा कराची का एयरपोर्ट जहां उन जर्नलों का अपना आर्मी चीफ मुशर्रफ लैंड करने वाला था को अपने कंट्रोल में लेना था। शाम 6:15 के न्यूज़ बुलेटिन के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मिलिट्री का पहला दस्ता जो कि 15 जवानों पर मुश्तमिल था 6:30 पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में पहुंच चुका था। पोर्च के सामने आते ही इस दस्ते के सरबराह लेफ्टिनेंट कर्नल शहद अली सत्ती ने जनरल ज़ियाउद्दीन को 6 सादा लिबास वाले ISI अफसरान के साथ सीढ़ियों पर देखा। कर्नल ने सादा लिबास वालों को हथियार डालने का हुक्म दिया। उन्होंने इनकार कर दिया।
इस पर जनरल ज़ियाउद्दीन ने कर्नल को पीछे हटने को कहा। जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि इस मौके पर जनरल अकरम ने कर्नल शहद से कहा, मंगला और पिशावर से उनकी हामी फौजें रावलपिंडी के करीब पहुंच चुकी हैं और जल्द ही इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। शहद अली ने जवाब दिया कि हमारे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आपके हामी दस्तों को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर तैनात हो चुकी हैं। कर्नल कांपने लगा क्योंकि वो मुकर्रर करदा आर्मी चीफ के हुक्म की नाफरमानी कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी, मगर अगले ही लम्हे कर्नल ने पलटा खाया और कहा, सर मुझे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। जनरल ज़ियाउद्दीन ने कर्नल सत्ती के ताव और तेवर देखकर अंदाजा लगाया कि मज़ाहमत बेकार है। नए चीफ ने अपने आदमियों से कहा कि वो अपने हथियार रख दें। प्राइम मिनिस्टर हाउस भी फतह हो गया था। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर नवाज शरीफ को यकीन हो गया था कि अब उसकी गेम ख़त्म है। ये समझते हुए कि वो माजूल होने वाला है, नवाज शरीफ ने फ़ौरन कुछ डॉक्यूमेंट्स के टुकड़े करके फ्लश कर दिए। इसके बाद वो अपने भाई शहबाज और अपने बेटे हुसैन नवाज के साथ अपनी किस्मत का इंतज़ार करने के लिए हाल में जमा हुए। 15 फौजियों के दस्ते ने जब प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया तो इस मिलिट्री कू के रूह रवां लेफ्टिनेंट जनरल महमूद खुद वहां पहुंचे और नवाज को देखते ही कहा, आपने ऐसा क्यों किया? नवाज शरीफ ने कहा, मैंने ऐन और कानून के मुताबिक ये कदम लिया है। ऐन और कानून को तो अब हम देख लेंगे, जनरल महमूद ने जवाब दिया और कहा, मैं दुआ मांग रहा था और उम्मीद कर रहा था कि ये नौबत ना आए। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर अब मुशर्रफ के हामी जर्नेलों के कंट्रोल में था। कराची एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट का अमला जानता था कि कोई तबाही हो सकती है। अगर ये क्रैश हो जाए तो, एक ने पूछा, अगर ये क्रैश हो जाए तो हम इसका इल्ज़ाम नहीं ले सकते, दूसरे ने जवाब दिया। रावलपिंडी में जीएचक्यू ने पहले ही कराची के कोर कमांडर मुजफ्फर उस्मानी को कराची एयरपोर्ट पर कब्जा करने का हुक्म दिया था ताकि मुशर्रफ उतर सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 अथॉरिटीज़ यानी फौज और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के दरमियान फंस चुके थे कि वो किसका ऑर्डर माने। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने फौरी बास अमीनुल्लाह चौधरी की बात मानते हैं। जहाज में ईंधन की कमी को देखते हुए मिलिट्री सेक्रेटरी ने वापस अमीनुल्लाह चौधरी को कहा कि त्यारे को नवाब शाह में उतरने की इजाज़त दी जाए, लेकिन रनवे के आखिर में अलग थलग करके ईंधन भरा जाए और फिर इसे अरब ममालिक की तरफ रवाना किया जाए और किसी को भी जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जहाज को बताया कि वो नवाब शाह में लैंड कर सकता है। इसी असना में एक ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर जबार कंट्रोल टावर तक पहुंच चुके थे। पाकिस्तान एयर डिफेंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार ज़ाती तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर गए और जहाज़ के पायलट से कहा कि वो जहाज़ को वापस कराची ले आए क्योंकि हर चीज़ अब उनके कंट्रोल में है। इस मौके पर जनरल मुशर्रफ लिखते हैं कि मैं अभी तक शक में था, इसलिए मैंने खुद इफ्तिखार से बात की। मुझे ये यकीनी बनाना था कि ये वाकई वही है। कोर कमांडर कहाँ है? मैंने पूछा। सर, कोर कमांडर वीआईपी लाउंज में हैं। वो गेट पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हूँ। मुशर्रफ मजीद कहते हैं, मैं अब भी इस बात को दुगना यकीनी बनाना चाहता था। क्या आप मुझे मेरे कुत्तों के नाम बता सकते हैं? डॉट एंड बडी, सर, उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। शुक्रिया इफ्तिखार। जनरल महमूद और जनरल अजीज से कह दो कि कोई मुल्क छोड़ कर ना जाए। शाम 7:47 पर मुशर्रफ के जहाज PK-805 ने जिनाह एयरपोर्ट के रनवे को छुआ तो इसमें सिर्फ 7 मिनट का फ्यूल बचा था। मुशर्रफ के हामियों ने आखिरी अहम मोर्चा भी फतह कर लिया था। रात 10:15 पर PTV की नशरियात दोबारा चली तो इस पर मिली नगमे चलने लगे। सुबह के करीब यानी कि 2:51 पर अचानक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ PTV की स्क्रीन पर नमूदार हुए और कौम से मुखातिब हुए। मेरे अजीज हम वतनो, रात के पिछले पहर मुल्क का सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ था। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।